And meanwhile, am I audible to you? Just mention yes in the chat box. So, good afternoon, everybody, once again. So, I hope that everybody are in and I am audible to you. Yes, Santosh, Sumit, audible? Okay. Yes, sir, audible. So, we are here to understand the practical aspect of the highway and transportation engineering subject, right? So, in brief, we have two part uh, in the laboratory sessions. So, I'm sharing a screen with you so that you have an idea that so this is a laboratory manual on screen you are seeing, right? So first of all, so as we are discussing that we have two parts, right, in the highway and transportation engineering laboratory. So first part is you just check that whether the aggregate that you are using in the construction of the highway are good or bad or simply pass or fail, right? तो आप क्या करते हैं कि पहले पार्ट जो है हमारा उसमें हम एग्रीगेट को चेक करेंगे कि हम ये जो एग्रीगेट यूज करने जा रहे हैं रोड कंस्ट्रक्शन में वो पास है कि फेल है, राइट? जस्ट ए मिनट. ओके. सो दैट इज द पार्ट वन. हम एग्रीगेट पे अलग अलग टेस्ट करेंगे और हर एक टेस्ट के बाद हम चेक करेंगे वेदर दैट एग्रीगेट इज
acceptable or suitable for the highway construction or not. So that is the part one. Okay, so that part right now is taken by the Jay Pandya sir, and my portion I'm discussing is we are going to discuss about the second part. Okay, so yes, this is the second part. So you need to write down the test on bitumen, right? So in this segment, we are going to check that whether we are using whether the bitumen we are using for the construction purpose is pass or fail. So in brief, we will check out that whether the material using the material we are using for the construction purpose is suitable or not, right? So various tests that we are going to perform on the bitumen or and aggregate also. So aggregate, you can say, the major component in the road construction, right? So if you see, if you go to the site and where the highway is constructed, at that time you will see that majority component, okay, is aggregate. We are laying the bigger size aggregate at the last. Then in the next layer we are adding slightly smaller size of aggregate in that layer. So meanwhile we will reach to the top. We will reach to the desirable thickness, right? So the important point is aggregate is there, right? But we required a bonding agent. समझ में आ रहा है मैं आपको क्या कह रहा हूं? We required a bonding agent to bind these two layers, right? आप रोड कंस्ट्रक्ट हो रहा है, वहां पे आप जाएंगे तो आपको वह देखने को मिलेगा कि हम क्या करते हैं कि सबसे बड़ा वाला जो है एग्रीगेट साइज में, उसको हम सबसे नीचे के लेयर में रखेंगे, ठीक है? उसके बाद हम उसके आगे के लेयर में उससे छोटे साइज के एग्रीगेट यूज करेंगे, उसके आगे उससे छोटे साइज, देन वी कम टू द फाइन एग्रीगेट, राइट? सो मीनवाइल जैसे जैसे आप लेयर बनाते जा रहे हो, तो उसको बाइंड करने के लिए आपको एक बाइंडर चाहिए होगा, कोई जो इसे होल्ड कर सके, ठीक है? तो वो है बिटुमिन. बिटुमिन बेसिकली इज ए बाइंडर. ओके, बाइंडर जो बाइंड करके रखता है, जिसकी बॉन्डिंग स्ट्रेंथ ज्यादा है, ठीक है? सो अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट डू यू मीन बाय बिटुमिन, सो व्हाट विल बी योर आंसर? हमें बिटुमिन पे Bitumen टेस्ट is a करना है. binding material. यस, Binding material. is a binding material, that is the right, but High what is the strength binding material. okay? So first and foremost thing that you need to understand is whether you are going to test the bitumen, you must have a clear cut idea of the various properties of the bitumen, right? So when I say that what do you mean by bitumen, the first answer is you are right. Bitumen is a binder material. It will provide the, it will bind the two layers of the aggregate, okay? Or it can providing a smooth surface on the road, right? Okay, so the layer you are laying on which, if you want, if you required a smooth surface, you will simply lay a layer of the bitumen, right? So because of that bitumen layer, you will gain a smooth surface of road, right? So that's why we have a classification of the highway, that rural road and urban roads, right? So in majority of the rural road, you will simply say that the we are not utilizing the bitumen as a binder, right? So there is a simple road. So that is what we call say water bound mechanism, right? So WBM is there. So आप हिंदी में अगर बात करें तो उसको हम कच्चा रोड और पक्का रोड दोनों कह सकते हैं, ठीक है? तो कच्चा रोड में क्या होता है कि वहां पे जो है कि नॉर्मल है, एग्रीगेट आपने लगाया, लेयर दूसरा लगाया, तीसरा लगाया, उसके बाद उस पर पानी का छिटकाव कर दिया, ठीक है? तो वो आपका बन गया वाटर. जो कच्चा रोड है गांव में जैसे होता है, आप अगर गए हो, ठीक है? तो कच्चा रोड जो होता है वो हो गया वाटर बाउंड मैकेनिज्म. वहां पे हम पानी सिर्फ एग्रीगेट का लेयर करके पानी कर देते हैं. लेकिन अगर आप नेशनल हाईवे बिल्ड करना चाहे तो तब आपका वो वाला जो कच्चा रोड है वो फेल हो जाएगा,
या फिर आप अर्बन एरिया के रोड फाइंड करना चाहे तो, अर्बन एरिया में रोड कंस्ट्रक्ट करना चाहे तो। सो एट द टाइम दैट वाटर बाउंड मेकेडम जो पुराना है, जो कच्चा रोड है, वो नहीं चलेगा। सो दैट्स वाई हमें क्या चाहिए होगा, एक प्रॉपर स्मूथ सरफेस चाहिए होगा। We required a proper smooth surface on which the vehicles can move, right? And the second thing is we required a binder which will bind two layers together, right? तभी तो जो आप कभी कभी जहाँ पे कटे हो जाते हैं, देखिए, ठीक है, तो ये आपका ऑब्जर्वेशन रहेगा कि जहां जहां आपको पेच वर्क मिलता है रोड पे, राइट, तो वहां पे एग्रीगेट सेग्रीगेट हो जाता है। सेग्रीगेट का मतलब क्या है कि अलग हो जाते हैं, ठीक है, उसके लेयर से वो अलग हो जाते हैं, इसलिए गड्ढे बन जाते हैं। तो वो अलग क्यों हुए, सेग्रीगेट कब हुआ, एग्रीगेट का क्यों हुआ, कि जब जब आप रोड कंस्ट्रक्ट कर रहे थे तब आपने जो बाइंडर लगाया है उनकी पकड़ छूट गई। उसको जितना बाइंड करके रखना था, वो व्हीकल वहां से पास हुआ जिसमें ओवरलोडिंग था, टाइप ओवरलोडिंग था, तो लोड ज्यादा आ गया, तो लोड ज्यादा आया तो उसमें क्या हुआ कि पेच जनरेट स्टार्ट हो गए, ठीक है, लोड जो सस्टेन नहीं कर पाए तो उसका पकड़ जो थी, उसकी बाइंडिंग स्ट्रेंथ थी, जो बॉन्डिंग स्ट्रेंथ थी, वो कम हो गई। तो इसकी वजह से रोड में गड्ढे पड़ गए। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द बिटुमिन। व्हाई वी आर टेस्टिंग द बिटुमिन, कि अगर आपको रोड में रिपेयर वर्क, पेच वर्क कम करना है, तो आप पहले से ही ऐसा बिटुमिन यूज कीजिए कि वो सारे टेस्ट में से पास हुआ हो, ठीक है। तो क्वालिटी मैटर्स एट दैट टाइम। अगर आपकी रोड की लाइफ स्पान आपको 20 ईयर्स, 30 ईयर्स, 40 ईयर्स चाहिए, तब आपको क्वालिटी पे डिपेंड रहना पड़ेगा, राइट। सो वी आर चेकिंग द क्वालिटी ऑफ द बिटुमिन इन द लेबोरेटरी, right? So our very first task is we need to check the aggregate, right? So whether it is fail, whether it is pass or fail in the aggregate impact value test, aggregate crushing strength, right? We need to also check the bitumen because it is very important. It will bind two layers together, right? So that's why we are performing the test on bitumen, right? तो आपका आंसर तो ये सही है कि आप एक बिटुमिन जो है वो बाइंडर मटेरियल है। इसके अलावा आपको बिटुमिन को डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे? एक और मैं आपको एक सिंपल पूछूं कि हम बिटुमिन क्यों यूज करते हैं कंस्ट्रक्ट करने में, कोई और मटेरियल यूज नहीं कर सकते? ડામરનો શું કામ આપણે રોડ બનાવે? ચાલો નહીં પડી. By utilizing bitumen in the road construction, તો તમને આન્સર મળી वोटर જશે. रेजिस्टिंग વોટર રેઝિસ્ટન્સ પ્રોપર્ટી, ઓકે, ચાલો. હોટેલ્સ, प्रॉपर्टी सर। યસ सर પીપલ, इकोनॉमिकल है इसीलिए सर। ઇકોનોમિકલ, सर ने स्ट्रेंथ ઇકોनોમિકલ क्यों વધારે એ है? પ્રમાણે जस्ट ए मिनट, वन बाय वन सो दैट वी कैन डिस्कस इन डिटेल। यस दीपक कुमार, वो इकोनॉमिकल है आपने बताया, ठीक है। सो व्हाई इट इज इकोनॉमिकल? सर वो सस्ता मिलता है सर। हाँ, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, सस्ता क्यों मिलता है? सर वो कहाँ की ज्यादा मात्रा में हम लोग यहाँ होता है वो। नहीं, ऐसा नहीं है। સર સસ્તા ક્यों ક્રૂડ मिलता है? પેટ્રોલિયમની એન્ડ પ્રોડક્ટ હોય એટલે સર પેટ્રોલિયમ यस વેસ્ટ હોય यस, એટલે हाँ, यस यस, सिंपल सिंपल थिंग इज दैट इट इज अ वेस्ट फ्रॉम द पेट्रोलियम इंडस्ट्री। पेट्रोलियम प्रोडक्ट ની વેસ્ટ છે, વેસ્ટમાંથી આપણે બેસ્ટ બનાવીએ છીએ. ધેટ્સ વાય વી આર યુટિલાઇઝિંગ ધ bitumen એઝ અ કન્સ્ટ્રક્શન મટીરિયલ. હવે ખ્યાલ આવ્યો? સો વોટ ઇઝ ધ અધર meaning if you want to if you want to define a bitumen? So you need to write down in your class note that bitumen is a petroleum product, but it is a waste. So it is a petroleum product, but we are obtaining it from the distillation of the petroleum crude oil.
इसमें कि हम क्या किया कि हम जो पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स बना रहे थे, ठीक है, तो उसको हम हीट करते गए, हीट करते गए, और लास्ट में जो ओवर हीटिंग के कारण जो हमें सॉलिड मटेरियल मिला वो बिटुमिन है। आपको बात आ रही है? राइट और रॉन्ग? सो पेट्रोलियम byproduct, first and foremost thing. So if you want to define a bitumen, so bitumen is a petroleum byproduct. That means that's why we are utilizing the bitumen in the road construction. ठीक है, इसके इसके अलावा आप क्या यूज कर सकते हैं? प्लास्टिक वेस्ट भी कुछ तरह में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है थर्मल पावर प्लांट में से जो फ्लाई एश निकलते हैं उसको भी आप यूज कर सकते हैं रोड कंस्ट्रक्शन में, राइट, सीमेंट के रिप्लेसमेंट के तहत। और अगर आप मोर में रोड रहे हैं तो वहां पे उनकी जो टाइल्स जो इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री है, तो उसमें से जो भी वेस्ट निकलता है वो भी आप एग्रीगेट जगह यूज कर सकते हो, बट यू नीड टू चेक फॉर इट, राइट? सो दैट्स व्हाई वी आर परफॉर्मिंग द वेरियस टेस्ट ऑन बिटुमिन, राइट? तो सबसे पहले जो है आप टेस्ट के नाम लिख लीजिए, ठीक है, उनमें जो भी हमारे लेबोरेटरी में फिजिबल होगा वो हम परफॉर्म करेंगे, ठीक है, जब यहाँ कॉलेज आएंगे तब। तो our spectacle is, we just write down softening point test. Softening point test. So first test on the bitumen is softening point test. Right? So we are checking the softity of bitumen. Right? कभी कभार आपने न्यूज में सुना होगा कि न्यूज में अमूमन ये है कि समर टाइम में, ठीक है, तो जो रोड बनाया है वो पिघल गया। ऐसा सुना है भी न्यूज में? जो बिटुमिन का रोड था उसका ऊपर लेयर क्या हो गया? सॉफ्ट इतना गया कि आप चलते हो तो वहां पे डिप्रेशन बन जाता है। हाँ सर। व्हीकल्स के जो टायर्स होते हैं उसमें चिपक जाते हैं। ऐसा आपने सुना है कभी? પ્રેશર જેવું નીચે ખાડા જેવું થઈ જાય हाँ? સર, તેના ગરમ થઈ જાય, ઓગળી ઢીલું સર થઈ જાય ને તે કારણે સર મોટા ખટારાનું પ્રેશર આવે તો તે સર નીચે દબાઈ જાય એવું થઈ જાય. Okay. Another thing, it is available on the internet. You will check that कि रोड जो है बिटुमिन का बनाया था वो पिघल गया। आप ऐसा लिखना तो आपको मिले, वहां पे न्यूज में है, ठीक है, लोग चल के जा रहे हैं उस पे तो चिपक जाते हैं। इसके अलावा कस पे उसके ऊपर जाते हैं तो चिपक जाते हैं भाई। Because just think about this, because somehow directly or indirectly the bitumen they have used in the construction of the road is failed in softening point test. ऐसा तभी होता है जब आपका बिटुमिन का सैंपल सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट में से फेल हुआ हो। क्यों? क्योंकि इसमें हम ये चेक कर रहे हैं कि बिटुमिन हमारा सॉफ्ट होता है, यानी कि लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, ठीक है, तो उसके स्पेसिफिक अरेंजमेंट है, उसके स्पेसिफिक प्रोसीजर है, वो आपको फॉलो करके आपको एक लास्ट में टेम्परेचर मिलेगा कि हम ये चेक करेंगे कि कितने टेम्परेचर पे हमारा बिटुमिन जो है वो सॉफ्टन हो रहा है। आपको बात समझ में आ रही है? तो व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ द सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट? सैंपल में ले दो, आपने वो सैंपल जैसे कलेक्ट किया, यू हैव टेकन अ सैंपल ऑफ बिटुमिन and you have performed the softening point test. So what will be the unit of that sample?
Are you getting point or no? નથી સમજાતું? નથી સમજાતું? હું શું પૂછું છું कि बिटुमिन નું सैंपल તમે લીધું, राइट? इसको हम इंग्लिश में भी बोलेंगे, हिंदी में भी बोलेंगे, गुजराती में भी बोलेंगे, ठीक है? So first of all, if you have taken a bituminous sample, right, and you have performed a softening point test on that sample, so what will be your end result? What is the unit of your end result? आप अपना रिजल्ट जो है वो किस में इंडिकेट दिखाएंगे? जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं. यस, यस, टेम्परेचर ऊपर डेफिनेटली यस, टेम्परेचर. जैसे आप कंक्रीट की क्रशिंग स्ट्रेंथ करते हैं, ठीक है, कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में, तो उसका एंड रिजल्ट आप किस में देते हैं? न्यूटन पर एमएम स्क्वायर या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, लोड अपॉन एरिया, राइट? So for the softening point test of a bitumen, your end result will be in the temperature. आपको समझ में आ रहा है? Yes, हमें sir. हमें ये चेक करना है कि बिटुमिन कितने टेम्परेचर पे सॉफ्ट बनता है. अब इस टेस्ट का करने का रीजन क्या है? कोई मुझे बताएगा? बहुत सिंपल है, और आपको थोड़ा थोड़ा प्रोसेस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम ये टेस्ट क्यों कर रहे हैं. हमें यह मालूम हो गया कि सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट होता है बिटुमिन का. हम उसमें सॉफ्टिविटी चेक करते हैं कि कितना सॉफ्टन है हमारा बिटुमिनस मटेरियल. हम ये भी चेक करते हैं कि कितने टेम्परेचर पे वो सॉफ्ट होता है. लेकिन हम ऐसा करते क्यों है? Why we Sir, are ખબર करते પડે हैं? કે આપણે Just general one by use one. માં કરીએ કે નહીં. हाँ, yes. What is your opinion? Yes. કે સર આપણા કેટલા ટેમ્પરેચરે સર આપણું ક્લાઇમેટ હોય તે હિસાબે તે રહી શકે કે નહીં bitumen સર રોડ ઉપર? Yes, definitely, because we have a different temperature in the different regions, right? बधी जगह सेम टेम्परेचर छे? आपको कभी भी ऐसा ऐसा महसूस हुआ कि सभी जगह पे अलग अलग, पूरे वर्ल्ड लेवल की बात करें या फिर इंडिया लेवल की बात करें, तो भी आपको कहीं पे भी ऐसा दो लोकेशन नहीं मिलेगा जहां पे टेम्परेचर सेम हो. लोकल रीजन की बात नहीं कर रहा हूं. अगर आप राजकोट का टेम्परेचर फाइंड करेंगे तो आपको एक ही पॉइंट का बताएगा, ठीक. लेकिन मैं अगर आपको कहूं कि गुजरात का जो टेम्परेचर है एवरेज, राइट, आज का पूरे दिन का, और अगर हम उसको लद्दाख या फिर जम्मू कश्मीर में कंपेयर करें तो, उसके बाद हम वेस्ट बंगाल की ओर चले जाए तो, उसके बाद हम नीचे साउथ में केरल और कर्नाटक का एवरेज टेम्परेचर ले तो आज के दिन का, वो कभी भी सेम नहीं होगा. ये बात समझ में आ रही है आपको? आर गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. यस सर ठीक है, क्योंकि हमें ये चेक करना पड़ेगा भाई, हम जो बिटुमिन यूज करने जा रहे हैं रोड कंस्ट्रक्शन में, राइट, तो वो उतना कैपेबल है कि वहां का टेम्परेचर वो सह सके. यस और नो? आपका समझ में? राजस्थान का जो टेम्परेचर है, जो मटेरियल आप बिटुमिनस मटेरियल यूज कर रहे हैं रोड कंस्ट्रक्शन में, ठीक है, तो मान लीजिए आप जम्मू कश्मीर या नॉर्थ साइड में आप यूज कर रहे हो, वैसा का वैसा सेम मटेरियल आप राजस्थान में नहीं यूज कर सकते. क्यों? क्योंकि हमारे अलग अलग रीजन जो है उसके टेम्परेचर अलग अलग है, राइट. सो यू मे सिंपली से दैट the bitumen will pass in the Jammu Kashmir and fail in the Rajasthan. ख्याल आवाज है? ऐसा हो सकता है कि जम्मू कश्मीर में आपका जो एक ही सैंपल है आपके पास, और वही सैंपल जम्मू कश्मीर और लद्दाख रीजन में पास हो गया, आपने टेस्ट परफॉर्म की तो, और राजस्थान में वो फेल हो जाएगा. डेफिनेट थिंग है, क्योंकि राजस्थान का टेम्परेचर जो है वो कंपेरेटिवली हाई है, राइट. So because of the regional variation in the temperature, we have a daily variation of the temperature, right? We have a seasonal variation of the temperature, okay? We have monthly variation of the temperature. We have annual variation of the temperature. हर एक रीजन का एनुअल एवरेज टेम्परेचर अलग अलग होगा.
हर एक रीजन का एनुअल सीजनल टेम्परेचर अलग अलग होगा. So it is necessary that we need to check the bitumen in such a manner that it will maintain the quality. Okay, it will bind the two layers of the aggregate. That's why we are performing the softening point test. ये बात समझ में आई आपको? Any doubt? नो डाउट सर. नो सर. ठीक है. एक और बात मैं आपको बताता हूँ कि हम क्या कर रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं. ठीक है, कि मान लीजिए ये एक्चुअल में भी हो रहा है. ठीक है, कि अगर आप लद्दाख की और जम्मू कश्मीर की बात करें, ठीक है, तो जो गए होंगे उसको पता होगा कि टेम्परेचर वेरिएशन बहुत ज्यादा है. ठीक है, तो लद्दाख में जितना टेम्परेचर होता है उतना टेम्परेचर समर सीजन में जम्मू कश्मीर में नहीं होता. तो जब आप घर डिजाइन करते हैं, ठीक है, हाउस की डिजाइन जो होती है उसमें क्या होता है कि जो लद्दाख, जो जम्मू कश्मीर का जो इंसुलेटर है, ठीक है, क्योंकि वहां पे ठंड बहुत पड़ती है, तो उन लोग क्या करते हैं कि घर के अंदर की साइड एक इंसुलेटर लगा देते हैं ताकि बाहर की जो ठंड है वहां अंदर ना आ सके. ठीक है, तो सेम काइंड ऑफ फिनोमिना वो लद्दाख में भी करते हैं. एक्चुअली वो गलत है. क्यों? क्योंकि उनको तो बाहर से आनी चाहिए हवा, उसको गर्म होता है. ठीक है, ठंडा प्रदेश जो है कम होता है, तो वो और ठंडी में रहते हैं. तो डिजाइन कॉन्सेप्ट आप यूज करने जाओ तो रीजन टू रीजन डिजाइन में वेराई. राइट, अगर आप ठंडी की बात करें या फिर गर्मी की बात करें, दोनों केस में आपके घर की डिजाइन जो है वो चेंज होती रहेगी. ऐसा नहीं है कि इट इज लाइक दैट कि अगर जम्मू कश्मीर वाले को पेट दर्द हो रहा है और वो जो दवा ले रहा है वही लद्दाख वाला भी लेगा. राइट, सो सिंपल थिंग इज दैट डिजाइन में वेराई. राइट, तो ऐसा आप कह सकते हैं कि उसको प्रॉब्लम है तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम वही है. ऐसा नहीं होता, आपको सिचुएशन के हिसाब से प्रोवाइड करना होता है. सो दैट इज द सॉफ्टनिंग पॉइंट. राइट, तो ये टेस्ट आपको पता चला, softening point test. So in this test we are going to determine the softening point of a given sample of a bituminous material by using ring and ball apparatus. वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि रिंग एंड बॉल apparatus कैसा होता है. ऐसा होता है. ठीक है, तो ये आपको अभी बेसिक आइडिया इसलिए. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आप देखिए एक रिंग है, सर्कुलर रिंग है, और एक बॉल है. ठीक है, उसको हम, और वहां पे बीच में जो है, यहाँ पे आप देख रहे हैं बीकर के अंदर जो है वो असेंबली को, ये असेंबली को रखेंगे. राइट, और आप में इस फिगर 2 है उसमें आपको बिटुमिन दिख रहा है. फिगर 2 है जो आपके सामने है, उसमें आप मुझे बताइए बिटुमिन कहाँ पे है. जो सैंपल हम चेक करने वाले वो कहाँ पे है, आप मुझे बताइए. एनीबॉडी? सर डाउनवर्ड साइड. See, yes, definitely. So bitumen is at the bottom side. You can just reflection છે ત્યાં જો તમે પ્રકાશ થોડો આવે છે એટલે તમને એવું લાગશે, but it is at the base. जो फिगर 2 છે ને, आपको दिख रहा है फिगर 2 में नीचे की साइड एक रिंग है. ठीक है, एक रिंग है, उसमें हमने बिटुमिन का सैंपल रखा हुआ है. राइट, we have kept that bitumen sample in that ring, and above that ring we have placed one ball. Okay, one ball, small ball. जैसे you can consider like a ball bearing. Right, bearing आपने सुना है bearing का नाम, साइकिल में कैसा होता है बॉल बेरिंग. राइट, सो उसका जो बेरिंग है, ठीक है, वो हम ले रहे हैं. ठीक है, बॉल पॉइंट ऑफ व्यू. सर इट इज इन सॉलिड फॉर्म. यस, सर એ સોલિડ ફોર્મમાં હે ને ટેસ્ટ કર્યા પેલા બોલ ની નીચે. हाँ, every time when you are performing a test on the bitumen, the first task is a bitumen is always in a solid form at the room temperature. Right,
तो जब भी आप बिटुमिन का टेस्ट करने जाएंगे, आपका बिटुमिन रूम टेम्परेचर पे सॉलिड ही होगा। आपका पहला टास्क ये रहेगा कि आप उसको हीट दीजिए, हीटिंग दीजिए, राइट। So first task is you to heat the bitumen, and after heating that sample, you mold that bitumen sample as per your requirement. तो आपको सबसे पहले टेस्ट करेंगे, कोई भी टेस्ट करेंगे, आपको बिटुमिन को हीटिंग देनी ही पड़ेगी। बिटुमिन का कोई भी टेस्ट करना है, आपको हीटिंग प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी, राइट। यू हीट योर सैंपल, okay, at the 135 degree to 160 degree. You make it solid form into the liquid, okay, and after that liquid form, you just fill that liquid in the mold of respective test, right. तो उसके बाद की प्रोसीजर क्या है? You need to take care, you need to take care about, आपको उसको छोड़ देना है 1 घंटे के लिए या 1.5 घंटे के लिए, राइट। तो वापस से वो सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा, राइट। तो उसकी प्रोसीजर है, कितने टाइम तक उसको छोड़ के रखना है, हीटिंग करने के बाद, मोल्ड में फिल्ड करने के बाद कितने टाइम तक आपको उसको छोड़ देना है, ऐसे रूम टेम्परेचर पे रखना है, तो वो धीमे धीमे सॉलिड फॉर्म है उसमें आता जाएगा, राइट। सो उसके ऊपर जो है हम एक બોલ રખ દેंगे, ગુજરાતીમાં એને તમે છરા કહેશો, બરાબર? છરો તમે જોયો છે ને, સાયકલમાં છરા હોય અંદર, બેરિંગ, બોલ બેરિંગમાં, રાઈટ। so that kind of ball is there, very tiny ball, वो हम उसके ऊपर रखेंगे, a small ball, spherical ball, और हम ये चेक करेंगे कि कब ये बॉल जो है वो पूरा का पूरा वो बिटुमिन से अंदर होता हुआ नीचे की असेंबली, नीचे की जो 2 प्लेट्स है उसको टच कर पाएगा। ये असेंबली है, ठीक है, मैं आपको प्लेट भी दिखाता हूँ, राइट। सो दिस आर 2 प्लेट्स। तो आपको ये फिगर 1 में आप आ जाइए, ओके, एपरेटस है ये। इसमें क्या होता है, ये पूरी असेंबली आपको वाटर के अंदर रखनी है, ठीक है। इस बीकर में वाटर भरा होगा, ठीक है, और we will take that ring and ball assembly into the beaker, right, and we will place accordingly, right. After that, there is one thermometer is there to check the temperature, okay, and we will apply the heat, okay, from the ring and ball apparatus. So by heating, okay, what we are doing is, what we are performing is, we are maintaining the temperature, right. So we will provide heat, we will increase the 5 degree Celsius per minute, let us say, right. तो हम हर मिनट में 5 डिग्री तापमान जो है वो बढ़ा देंगे, हर मिनट में 5 डिग्री तापमान बढ़ा देंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जो आपका सॉलिड फॉर्म का जो बिटुमिन है वो धीरे धीरे पिघलने लगेगा, और वो बॉल जो है पिघल के, यहाँ पे आपको प्लेट दिख रही है नीचे की साइड, दिख रहा है, ये मेरा यहाँ पे एरो है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, राइट। सो आपको ये नोट करना है कि आपका जो बॉल है, ठीक है, वो बिटुमिन से निकलता हुआ कब वो प्लेट को टच करता है, वो टेम्परेचर आपको नोट डाउन करना है। आपको बात समझ आ रही है? प्रोसीजर हम सीखेंगे, प्रैक्टिकल भी हम करेंगे, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट, बट पूरा प्रोसीजर ये होता है, समझ में? वो आप परफॉर्म करेंगे तब आप कौन से मतलब आपको प्रिकॉशंस ध्यान में रखने हैं वो भी हम सीखेंगे, राइट। सो दैट इज द केस। तो हम हर 1 मिनट पे 5 डिग्री बढ़ाते जाएंगे और चेक करते जाएंगे कि वेदर बिटुमिन इज पास और फेल इन केस ऑफ सॉफ्टनिंग पॉइंट, क्योंकि बिटुमिन की ये प्रॉपर्टी है कि जब आप उसको रूम टेम्परेचर पे रखोगे तो वो सॉलिड रहेगा, जब आप उसको हीट प्रोवाइड करेंगे तब वो लिक्विड बन जाएगा, और वापस से आपने उस लिक्विड को रूम टेम्परेचर पे रख दिया तो वापस से वो सॉलिड बन जाएगा। इट इज दैट्स व्हाई द बिटुमिन इज विस्कोइलास्टिक, right, it has a property of viscoelasticity, it has a viscoelasticity, right। तो ये आपको, हम जब अब प्रोसीजर हम तभी लिखेंगे जब हम ये टेस्ट परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो ये आपका पहला टेस्ट है, ठीक है, सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट, और उसकी स्टैंडर्ड प्रोसीजर भी आपको यहाँ से मिल जाएंगी, IS 1205, IS 1205, इंडियन स्टैंडर्ड कोड 1205 1978 में इसकी सारी डिटेल जो है इसमें दी गई है कि
कौन से रीजन में कैसे किस तरह से प्रोसीजर रहेगा और आपको क्या स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता कि आप अपने हिसाब से टेस्ट परफॉर्म कर दिया और ओके बोल दिया, ठीक है। यू नीड टू फॉलो द स्टैंडर्ड प्रोसीजर। तो ऐसा नहीं होगा कि आपने राजकोट की लेबोरेटरी में टेस्ट कराया सॉफ्ट टर्निंग पॉइंट, तो उसमें बिटुमिन पास हो गया, और आप अहमदाबाद जाके सॉफ्ट टर्निंग पॉइंट टेस्ट कराया तो उसमें फेल हो गया। ऐसा नहीं होता। रीजन है, ठीक है, लेकिन लेबोरेटरी का जो परफॉर्मेंस है, प्रैक्टिकल का जो स्टैंडर्ड है, मेथोडोलॉजी है, वो आपको मेंटेन करना पड़ेगा, राइट। सो दैट इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर इन केस ऑफ सॉफ्ट टर्निंग पॉइंट टेस्ट। अनदर टेस्ट दैट वी आर चेकिंग फॉर द बिटुमिन, ये हमारी पूरी प्रोसीजर है आईआरसी इंडियन रोड कांग्रेस। हमने जो पढ़ा था ना आज के हाईवे के ट्रांसपोर्टेशन में लेक्चर में, कि आईआरसी एक काम करती है रिकमेंडेशन देने का, तो आपको देखिए आज आपके सामने आ ही गया। सो व्हाट इंडियन रोड कांग्रेस रिकमेंडेशन, ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सो दैट इज द केस। उन्होंने कुछ डिस्कशन किया है, कुछ पॉइंट्स दिए हैं, तो उनका काम ही यही है, ठीक है, इंडियन रोड कांग्रेस का, कि वो आपको रिकमेंडेशन प्रोवाइड करे। उसके बाद ओके, वी विल चेक फॉर द पेनिट्रेशन टेस्ट। So write down that second test, penetration. Okay, penetration test. Meanwhile, you can write down the IS code also, right? Right. So first of all, we have checked for the temperature, right? So whether it is pass in fail with regarding to temperature point of view. If pass, okay, then good. So it will go for the further test, penetration test, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पेनिट्रेशन टेस्ट जो है वो आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए जो है आपको जो नाम है इक्विपमेंट का, उसका नाम है पेनिट्रोमीटर। मैंने आपको लेबोरेटरी में दिखाया था, आपको याद हो, उसका स्केच में आपको दिखाऊंगा ताकि आपको रिकॉल हो जाए और वापस से आप याद कर पाए उसको, ठीक है। सो बेसिकली यू कैन सी the test we are going to perform on the bitumen. If your test name is penetration test, so we will have a penetrometer. तो अब हम ये चेक करेंगे कि पेनिट्रेशन की वैल्यू क्या रहेगी, राइट। तो पेनिट्रेशन की वैल्यू अगर इसको मैं आपको बताऊं तो पेनिट्रेशन का यूनिट क्या होगा, कोई मुझे बता पाएगा? आपने हाइड्रोलिक्स में भी सुना होगा, सॉइल मैकेनिक्स में भी सुना होगा पेनिट्रेशन। Let us say you can take example of water is penetrating, so उसका यूनिट क्या होगा? न्यूटन पर एमएम स्क्वायर सर। नहीं, वो तो आपका स्ट्रेस हो गया, लोड अपॉन एरिया, वो तो दैट इज योर स्ट्रेस। लीटर में सर? नो। एमएम सर। Yes, who is that guy? mm. We are measuring the penetration value in the length unit, right? It can be a millimeter, it can be centimeter, right? Okay, but penetration જે છે it is not desirable to represent the penetration value of the bitumen by foot, right? ફૂટમાં ન હોય, રાઈટ, કિલોમીટરમાં ન હોય, પણ તમારે નાના ટાઈની યુનિટ છે એમએમ છે, સેન્ટીમીટર સુધી એક્સેપ્ટેબલ છે, ફૂટમાં પેનિટ્રેશન તમારે બિટુમિનમાં નહીં આવે. So penetration, we are checking whether that we have checked that whether the bitumen is melting or not. Okay, yes, fine, it is not melting at the particular temperature, that is fine. Now we are checking that what if it come under a load,
Okay, so what will be the penetration? You simply say that we will have a small demonstration. Okay, what is going on the road in the laboratory session. So हम एक लेबोरेटरी में उसका छोटा सा स्मॉल कैम पे डेमो बनाते हैं, जो ये पेनिट्रेशन टेस्ट हम करते हैं. So simple, I am showing the image, right? So the concept is that, okay, I'm just sharing another screen. Okay, so there might be a blur image. Okay, so I'm sharing one more image from my phone. So just give me a time. Okay, now I think I'm sharing with the phone, right? So you will have idea, right? So the blur image will be, you can simply say that you can draw like this. So I'm sharing a screen with you. Just a minute. So I think it is visible to you, and I'm giving you Yes, sir. that figure. Okay, exactly the sketch of that figure. So before understanding this image, you need to take care about this image, right? So here you can see the concept of the penetration test. Okay, we are checking for penetration value, right? And the penetration is always in 1/10 of units. Yes, so as you can see from in the top, I'm zooming it, right? So this is our main concern. That penetration value is always when you are checking for the penetration test or penetration value, that penetrometer will give you 1/10 of right? So so reading shows like 40 in the dial gauge, you will receiving that 40, right? So that means 40 divided by 10 So that will be your answer, right? So penetration, it can be asked in the interview also sometimes. So the concept you will see here is you can simply say that just we have a two case. One is starting, one is after 5 seconds, right? So what we will do, we will have a bituminous sample at the 25 degrees Celsius that you can see on your screen, right? So bitumen we require at the 25 degrees Celsius, and we will have a needle. Okay, आपको ये needle दिख रही है? This is our needle, 100 ग्राम जहाँ पे लिखा है needle means सुई ले लीजिए, ठीक है? वो नीडल जो है उसके ऊपर हम वेट अप्लाई करेंगे 100 ग्राम का, ठीक है? और वो कितना पेनिट्रेट होती है, वो सुई जो है हमारे सैंपल में कितना पेनिट्रेट होती है आफ्टर द 5 सेकंड, दैट वी आर गोइंग टू मेजर. उससे हमें ये पता चलेगा कि मान लीजिए व्हीकल जो ओवरलोडिंग कंडीशन है, तो वेदर दैट डिप्रेशन इज जनरेटेड ऑन द बिटुमिनस सरफेस और नॉट. ठीक है, सो ओवरलोडिंग का जो है एक प्रॉब्लम है, वो भी आप इससे हम डेमोन्स्ट्रेट कर पाएंगे. तो दैट्स व्हाट वी आर चेकिंग, राइट? सो पेनिट्रेशन जो है आपको ये ऊपर दिख रहा होगा कि हमारे जैसे हमारे सर्वेइंग में 2 लेवल्स होते हैं, वैसे ही आपका जो फर्स्ट पॉइंट है ये वाला, ठीक है, मैं जो आपको इंडिकेट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है? दिस वन. Okay, so that depth we are going to measure for the penetration test. Okay, so उससे हमें ये पता चलेगा कि हमारा जो लोड है कितना कैपेबल है हमारा बिटवीन, राइट? लोड पॉइंट, लोड फैक्टर.
Further, if you want to learn after the learning of the concept, you can see the concept of the penetration test. This is the penetrometer. Is it okay? દેખાય છે તમને? So I think let us make it a portrait. Okay, now it is okay. So in that penetrometer, what you will do is, okay, so the assembly is there, and this is the penetrometer on which you will simply measure the penetration of the needle. Bituminous sample is there. You can simply just watch that different terms are there in the penetrometer, and dial gauge is there which show the readings. Okay, readings you need to take care about 1/10 of mm. जितना वहां रीडिंग है उसको डिवाइड बाय 10 करना है, ठीक है. एंड you will find a, simply say that you will find a penetration value, and based on that penetration value we are going to check the viscous, we can classify the bitumen based on it, okay. So that is regarding the penetration test. Sorry, my mic was off. So I'm asking for one more question, that uh, what will be the unit of the ductility? Unit of ductility. If you have performed सर मीटर या एमएम? लेंथ मीटर तो बहुत बड़ा हो जाएगा, सेंटीमीटर और एमएम, यूनिट लेंथ हमें मेजर करनी है, ठीक है. So unit of a length, that will be the end result of the ductility test. डक्टिलिटी टेस्ट में हम कितना वो एलोंगेट हो पाता है वो हम चेक करेंगे. सो दिस इज द डक्टिलिटी टेस्ट apparatus. मैंने आपको ये दिखाया था लेबोरेटरी में. सो इन द डक्टिलिटी टेस्ट, yes, so what we will do is we will put the samples of the bitumen in this assembly, and after that we will start applying the force. Okay, we will provide a tension, okay, or we will simply stretch the bitumen sample in a one particular direction, and we will measure that how much length the sample has covered. So that is the ductility testing, right? So you can simply checking the properties of the bitumen, whether it is maintaining the property of the ductility or not, right? So in that case also you will find that whether it is pass or fail, right? A good quality bitumen or not. Further thing is,
Okay, so the ductility you can measure in the centimeter simply. Here you can see, right, centimeter. So this is the case, right? Because we are applying the force and we are checking that how much a bitumen sample is elongated, how much length it covers, right? Further thing is the next test, demonstration of the viscosity test. Viscosity test. Now, what will be the unit of the viscosity? Anybody? सर वो तो यूनिट लेस होता है। क्या बात कर रहे हो? किसने बताया ये आपको? सर मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकंड? आपके पास इंटरनेट भी है, अब उसमें भी चेक कर सकते हो। पास्कल। Pascal second. So I need the explanation. Okay, how will you measure the viscosity? Unit क्या रहेगा? सीएम स्क्वायर पर सेकेंड सर। हाँ? मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। समझा पाओगे इसको? सर विस्कोसिटी को समझा सकते हैं सर, उसका यूनिट कैसे है इस। वही मैं कह रहा, आप जो यूनिट बोल रहे हो मुझे, उसको आप समझा पाओगे? नो सर। विस्कोसिटी का यूनिट बोले सर। हेलो सर। हाँ बोलो बोलो। विस्कोसिटी का सर व्यू होता है ना, हम्म। म्यू या व्यू ऐसे कुछ होता है, म्यू या व्यू हाँ म्यू म्यू, अब विस्कोसिटी उसकी का। वजह से मुझे बताइए। यस, न्यूटन्स वो फ्लूइड का लॉ है, ठीक है। टाउ इज इक्वल टू क्या है वो आपका शियर फोर्स का? क्वेश्चन क्या है सर? हेलो सर। यस। मीटर स्क्वायर पर सेकंड। हाँ सर તમે કયો જોઈએ હવે લગભગ। सर ये म्यू का क्या मतलब, क्या बताना है सर? स्टॉक या ऐसे कुछ करके होता है उसका, वो बताना है क्या? नहीं नहीं स्टॉक नहीं, में हाँ, मैं आपको ये पूछ रहा वन हूँ, स्टॉक इसको इजकल टू। टेस्ट आपने परफॉर्म किया तो आपको लास्ट में एंड रिजल्ट आपका क्या मिलेगा? ડેન્સી ओके, इन ब्रीफ सिंपली से आप क्या करोगे, ठीक है, आप वो जो यूनिट वाला कन्वर्जन है उसमें अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं आपको आसान सी ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। आपने एक बकेट में बिटुमिन का सैंपल लिया है जो लिक्विड फॉर्म में है, राइट? अब आप ડેન્સિટી સર। just listen me, okay, so after that you can decide, right? आपके आपके आपका जो सैंपल है लिक्विड फॉर्म में है, यू हैव टेकन ए लिक्विड सैंपल ऑफ अ बिटुमिन, राइट? एंड इन द विस्कोसिटी टेस्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू मेजर द टाइम, ओके। तो वो जो वॉल्यूम है सैंपल में, जो वॉल्यूम है दैट इज अ नॉन वॉल्यूम, राइट? हमें पता है कि कितना बिटुमिन का सैंपल लिया है, राइट? सो आप टाइम मेजर कीजिए सिंपल, कि वो एक छोटे से छेद में से, ठीक है, आप उस बकेट के नीचे जो है आप छोटा सा छेद बना दीजिए, ठीक है। और आप सिंपल विस्कोसिटी टेस्ट में यही करेंगे कि वो सैंपल खाली होने में कितना टाइम लगता है। सो दैट इज योर विस्कोसिटी। सो मेजरिंग द टाइम which is in the second, okay,
and you have a hole and at the bottom you can simply say the orifice, okay, square. उस बकेट के नीचे क्या है, एक होल है स्क्वायर, जो आप यूनिट डायमेंशन का ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपका बिटवीन का जो सैंपल है उसका फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो वो वॉल्यूम आपको पता है मीटर क्यूब में, ठीक है। तो आपके पास मीटर क्यूब है वॉल्यूम, वो कितना वॉल्यूम वो उस छेद में से पास होगा पूरा का पूरा, ठीक है, उसका हम टाइम मेजर करेंगे, ठीक है। तो यही है विस्कोसिटी, राइट। तो आपको क्या है कि अब थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए आप, ठीक है। तो वो आज है ना, आज ये वाला कर दीजिए, विस्कोसिटी का जो है ना यूनिट कैसे होता है, क्या होता है वो समझ लीजिए। मैंने आपको प्रोसीजर बता दी, उसको हम विस्कोसिटी कहते हैं, ठीक है। कि फ्लूडिटी जो फ्लो हो रहा है उनका इनवर्स वो हमारा विस्कोसिटी हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये चेक कीजिएगा, और आपको तब ये आसानी से समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली व्हाट इज विस्कोसिटी, राइट। और आप इंटरनेट पे भी चेकआउट कर सकते हैं। प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया कि किसे विस्कोसिटी कहते हैं, राइट। So I hope that you have got my point, and the time is much time. Okay, so we are keeping our session till यहाँ तक हम रख लेते हैं, ठीक है। We will keeping our session right now. Just write down your roll number in the chat box, and you can leave if you don't have any kind of queries. સર એમાં પોઈસ લખ્યું હતું ઈ સર હા, હવે તમારે પોઈઝ નું ફાઇન કરવું પડે ને। પોઈઝ એટલે શું થાય, તમે લખો આ વસ્તુ, તમે ફાઇન કરો। પોઈઝ એટલે શું થાય? કન્ફ્યુઝ થવાની જરૂર નથી, પણ તમે બે ત્રણ સાથે તમે લેશો ને તમને ખ્યાલ આવશે। So basically you can simply say the Pascal into second. Pascal is unit of pressure, you can say, right? So Pascal into second, 1 Pascal into second is equal to 10 poise. ઓકે ઓકે સર ડન સર તમે થોડુંક એમાં વર્કઆઉટ કરો ને પછી આપણે ચર્ચા કરવાના જ છીએ। ડન ડન સર ઓકે, છે સેમ વસ્તુ, પણ તમને કન્ફ્યુઝ ના થાવ તો તમારા માટે ઈઝી થઈ જાય। Okay, so you can leave if you don't have any query.